अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया इसराइल हमास की जंग को, और ये 48, 67, 73 की वॉर से भी लंबी होती जा रही है। लेकिन ये इसराइल का 9/11 है। ये ज़रा आप इसराइल के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो यूनाइटेड नेशंस को भी लताड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हुआ क्या और क्या अब वो करेंगे। This is Israel's 9/11. This is Israel's 9/11, and Israel will do everything to bring our sons and daughters back home. These images are horrifying. They are hard to see, and they are impossible to fully internalize. But I'm showing you all of this for a reason. Today, many members of the international community are supporting Israel, yes. But if history has taught us anything, we know that tomorrow that may not be the case. The international community, and particularly the UN and the Security Council, have a very short memory when it comes to Israel. The terror that we endure quickly becomes a side note. But this time will not be the same. We will not let the world forget the atrocities our country suffered. I want you all to remember what sadistic evil Israel is currently at war with. The world must not forget what I have shown you today. Hamas is a genocidal Islamist jihadist terror organization. It is no different than ISIS. It is no different than Al-Qaeda. There is no reasoning with genocidal jihadists. They do not want dialogue. They do not want conversation. They want one thing and one thing only: the annihilation of the Jewish state. This is a direct quote from their charter. The day of judgment will not come until Muslims fight the Jews and kill them. This is the Hamas charter. And it also says that whenever a Muslim encounters a Jew, he must butcher him. That's the Hamas charter. Internalize this. They want to butcher me. They want to butcher my children, my people, and my nation. They will not stop until they murder every single one of us. And this is precisely why this atrocity is Israel's 9/11. From now, nothing will be as it was. I promise you. Today we are shattering the paradigm. We are changing the equation. For 17 years since Israel unilaterally withdrew from Gaza, and since Hamas came to power, the world has tried to reason with these terrorists, barbaric terrorists. The international community sought to rehabilitate Gaza, giving tens of billions of dollars in aid. Friends, these funds did not go to building schools or hospitals. It was exploited only for terror. Every inch of Gaza has become part of Hamas's war machine, a war machine. And you know it. Money is fungible. तो अजीज़ दोस्तों, जंग काफ़ी फैल रही है। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अरदगान ने कहा है कि लोगों को पानी रोका गया है, लोगों को खाना रोका गया है, लोगों को हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये तो वार क्राइम्स हैं। ह्यूमन राइट्स को क्या हुआ? तो तैयब अरदगान साहब, अभी 2 हफ्ते पहले आपने सीरिया में 100 आदमी मारे थे ड्रोन हमला करके, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? आपने आर्मेनियन को अज़रबैजान की मदद करके मरवाया, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? आपने अपने मुल्क में कुर्दिशों का हाल ख़राब किया हुआ है, पूरा यूरोप कुर्दियों से भरा हुआ है,
वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। आपको अभी ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं? जब हमास ने किया तब आप मुंह में क्या डाल के बैठे हुए थे? तब आपको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए? और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, हम पानी और बिजली खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमास होस्टेजिस को छोड़े। और जहां तक मैं समझता हूं, होस्टेजिस को उस वक्त छोड़ेंगे जब होस्टेजिस बचे होंगे। होस्टेजिस को तो मार दिया होगा इन्होंने। इनके पास खुद पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखें, गजा का सारा पानी है ना, वो इजराइल से आता है, या इनके यहाँ एक डिसैलिनेशन प्लांट जो लगा हुआ है उसमें पानी प्योर होता है, समंदर का पानी मीठा किया जाता है, लेकिन वो फ्यूल से चलता है। तो इजराइल ने फ्यूल भी रोका हुआ है, क्योंकि फ्यूल सारा इजराइल से खरीदता है गजा, तो फ्यूल भी रोका हुआ है। बॉर्डर सख्ती से बंद हैं। इजराइल ने पहले दिन ऐलान किया कि सारे फलस्तीनी भाग जाओ। भागने का एक ही रास्ता था और कहीं रास्ता नहीं, बाकी तो इजराइल से इनका बॉर्डर मिलता है। गजा के पास अल रफाह चौकी है, इजिप्ट और गजा के बीच में वो छोटा सा जो बॉर्डर है। आप हैरान होंगे कि वैसे तो ये इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामी की और उम्मा के चैंपियन होते हैं। इजिप्ट ने गजा के साथ जो बॉर्डर है उस पर कंक्रीट की दीवारों के साथ पूरा बंद रखा हुआ है। पूरे बॉर्डर पे कंक्रीट की दीवार, खारदार तार और पूरा सख्ती से। और इजिप्ट के सीसी ने कहा है, जनरल सीसी जो उनका प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि जंग को रोकना चाहिए और मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इधर उधर से फ़लस्तीनियों को आने नहीं दूंगा। रफ़ाह बॉर्डर जो है, चौकी है जो रफ़ाह, वहाँ से आओ, बाकी कहीं से आने की कोशिश करोगे तो इजिप्ट ने अपने पूरे बॉर्डर को सख्ती से रोक दिया है, क्योंकि इनको पता है कि जो चौकी से गुजर के आएगा उसका रिकॉर्ड होगा इनके पास। बाकी तो जो मर्जी आई घुस गया कहीं से भी, तो वो फिर इजिप्ट के लिए भी खतरा है। फ़लस्तीनियों पे कोई भरोसा नहीं करता। फ़लस्तीनियों पे सिर्फ पाकिस्तान और ईरान भरोसा करते हैं, इसलिए कि वो उनके सिर्फ टेररिस्टों को लेके आते हैं अपने मुल्क में या कहीं और थर्ड कंट्री में ट्रेनिंग के लिए उनको रखते हैं, लेकिन अपने एज ए सिटीज़न फ़लस्तीनियों को कोई रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री इनकी मौजूद रही है। जॉर्डन में इन्होंने क्या किया, दूसरे मुल्कों में क्या कर रहे हैं, तो इसलिए फ़लस्तीनियों पे ये भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो इजिप्ट ने तो सख्ती से बंद रखा है। इजराइल ने पहले दिन ऐलान किया था, लेकिन साथ ही ये होता है कि आप एक सिनारियो लाएं अपने जहन में कि किसी होटल में, या एक मिसाल है, एक हवाई जहाज़ अगवा कर लिया। हवाई जहाज़ अगवा कर लिया, हवाई जहाज़ में 200 पैसेंजर थे, उसमें से 10 या 5 हाईजैकर हैं। अब जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं उनको तो नहीं पता ना कि इन 200 में से हाईजैकर कौन से हैं, 5। अब जब सारी डील हो जाती है, सब कुछ होती है, और वो जब पैसेंजर बाहर निकलते हैं, उन्हीं में अगर वो 5 भी शामिल होकर निकल जाएं और भाग जाएं, किसी कमरे में, अगर किसी होटल में, किसी जगह पे हाईजैकर्स ने लोगों को मुंह पे ढाटे बांध के बंदी बना लिया है, और जब डील हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है कि हमारे प्रिजनर छोड़ो, हमारे फलां बैंक अकाउंट में इतने जमा करा दो, स्विस अकाउंट में, या फलां, सब डील हो जाती है। अब वो छोड़ रहे हैं होस्टेजेस को, तो अपने ढाटे उतार के उन्हीं होस्टेजेस में शामिल होकर वो भी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हमास के टेररिस्ट फ़लस्तीनी जो रफ़ाह की चौकी से गुजर रहे थे उनके साथ जा रहे हैं। तो इजराइल ने 24 घंटे में 3 बार वहाँ पे बम्बार्डमेंट की। अब वहाँ पे लाखों लोग जमा हैं, क्रॉसिंग बंद है, क्योंकि वो इजराइल ने बमबारी करके चौकी तबाह कर दी, सारी रास्ते ही बंद कर दिए। इजराइल कह रहा है मैं तो आम फ़लस्तीनियों को जाने का कह रहा था, इसमें तो सारे टेररिस्ट जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, मुसलमान लोग हैं ना, इस वक्त एक ही राग अलाप रहे हैं कि हमास के किए की सज़ा फ़लस्तीनियों को क्यों दी जा रही है। देखें, ये इजराइल की कौंसल जनरल हैं भारत में, उन्होंने अभी बयान दिया है कि हमने, आप लोगों को मैं ये याद दिला रही हूँ, इन्होंने कहा कि हमने 2005 में गजा से अपने सोल्जर निकाल लिए, अपने जो सिविलियंस वहाँ रहते थे उनको निकाल लिए, हमने अपने मंदिर तोड़ दिए, टेम्पल्स यानी साइनागोग या जो भी इनकी इबादत की जगहें थी वो भी हमने तोड़ दी, हमने अपने कब्रिस्तान भी ख़त्म कर दिए उधर से, हम सब कुछ लेके गजा से निकल गए। तो
तो 2006 में क्या हुआ? फ़लस्तीनियों ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमास को इलेक्ट किया, गजा का कंट्रोल हमास के हवाले कर दिया। टेरर ग्रुप हमास का एक ही मोटिव है कि इजराइल को तबाह करना, एक एक यहूदी को मारना। ये इनका जिंदगी का मकसद है हमास का, जिनको गजा के फ़लस्तीनियों ने इलेक्ट किया। 2005 में गजा का कंट्रोल लेने के बाद हमास ने वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं कराए। इसके बाद इलेक्शन ही नहीं कराए, तब से वो रूल कर रहे हैं और फ़लस्तीनी उनके साथ शामिल हैं। और ईरान जैसी टेररिस्ट कंट्री इनको ट्रेनिंग देती है, इनको मदद करती है और फिर दूसरे देश, मुसलमान देश, इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। अजीज़ दोस्तों, बड़ा सोचने का मुकाम है कि अगर फ़लस्तीनी हमास को सपोर्ट नहीं करते तो क्यों 23 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं गजा में, और अगर कुछ 100 टेररिस्ट हैं तो 23 लाख उन कुछ 100 टेररिस्ट को पकड़ के इजराइल के हवाले क्यों नहीं कर देते? मुझे आप पूरी दुनिया में से फ़लस्तीनी छोड़ें, मुसलमान निकाल के दिखा दें जो कह रहा हो कि हमास ने गलत किया। जो कोई ऐसा कह भी देता है ना, तो साथ में कंडीशन लगा देता है कि एक्चुअली इजराइल ने फ़लस्तीनियों को एक ओपन जेल में रखा हुआ है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, इसलिए वो, तो उस पर भी डिबेट की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्या है। अगर आपको वो चीज़ भी समझनी है तो बिन्यामिन नेतन्याहू के मुंह से सुन लें कि इजराइल क्या है और यहूदियों के लिए इजराइल की हैसियत क्या है। The Jewish people have lived in the land of Israel, what is now the state of Israel, have lived here and have been attached to this place for about 3,500 years, 3.5 millennia. Now, roughly for 2,000 years, we were conquered by the Romans, we were conquered by the Byzantines. They did a lot of bad things to us, but they didn't really exile us, contrary to what people think, okay? The loss of our land actually occurred when the Arab conquest took place in the 7th century. The Arabs burst out from Arabia, and they did something that no other conqueror, not the Romans, not the Byzantines, not the Greeks before them, not Alexander the Great, nobody did before. They actually started taking over the land of the Jewish farmer. They brought in military colonies that took over the land. And gradually, over the next 2 centuries, the Jews became a minority in our land. So it is under the Arab conquest that the Jews lost their homeland. The Arabs were the colonials. The Jews were the natives dispossessed. Well, that happens in history. The Jews were dispossessed. We were flung to the far corners of the earth, suffered unimaginable suffering because we had no homeland. But we didn't disappear, and we never gave up the dream of coming back to our ancestral homeland. The Arabs who had conquered the land basically left it barren. They never made it their own. It was a barren land. It really had, practically it was an empty land. And in the 19th century, the idea of coming back next year in Jerusalem became a reality. By the way, in part because of Christian Zionist support for the idea of the Great Return. The Jews came back in the 19th century to the land of Israel. The result of this return was that we started building farms, factories, places of employment. Arabs from nearby countries started immigrating, and they now became, they call themselves Palestinians. They reconstructed history and said, we've been here for centuries. You have no right to be here. It's our land. It's not your land. It's been our land for 3,500 years. If you took over somebody's apartment, knocked them out, dispossessed them, and they never gave up the claim. They said it's our claim, and you left this barren dump, okay? And the families, the progeny of the people you kicked out, came back, rebuilt the house. You cannot come back and tell them you don't belong here. We're going to kick you out, especially since you're latecomers who've come to live in part of the house, which is what the so-called Palestinians are. Okay? We say to them, you can live here, we can live here, but it's our land, it's our state. And the reason this conflict continues is because the Palestinians, who represent the colonial powers, the Arab conquest,
the Middle East and beyond, they are saying, you have no right for a Jewish state. Well, we do. If any people has any right to a state, if any people never gave up their dreams of returning to their ancestral home, the Jews belong to this land belongs to the Jews, the Palestinians are free to live here next to us, among us, but they're not free to demand the dissolution of the Jewish state. That is not justice, that is injustice. That's the shortest lecture I can give you about Jewish history. अजीज दोस्तों, लंबी बहस है ये। इसमें हकीकत, आर्ग्यूमेंट, एविडेंसेस जीतते हैं। गज़ा का इतना सा इलाका कनानियों का होता था, फ़लस्तीनियों का होता था हिस्टोरिकली। जो आज गज़ा है वही कनानियों के पास होता था। वेस्ट बैंक भी जो फ़लस्तीन को अभी मिल रहा है वो भी फ़लस्तीन नहीं था कभी भी। यहूदियों की ये ज़मीन थी जो आपने सुना बिन्यामिन नेतन्याहू से, और यही हकीकत है। जब देखें, ये कह रहे हैं कि इजरायली ब्रिटिश दौर में आके वहाँ पे आबाद होते रहे पूरे इजराइल में, यहूदियों ने फ़लस्तीनियों में। तो भाई साहब, वहाँ पे उन्होंने गन पॉइंट पे कब्जा नहीं किया था, उन्होंने फ़लस्तीनियों से ज़मीन खरीदी थी। दूसरा, वो अपने घर वापस आए थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में यहूदियों को निकाल के सारे फ़लस्तीनियों को और अरबों को वहाँ भरा गया था ना। सलाउद्दीन अय्यूबी आया तो उसने अरब आबादियाँ वहाँ पे कायम की, सारे यहूदियों को निकाल दिया था। हज़रत उमर ने जब कब्जा किया यरूशलेम पे, जिनसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, एक मुसलमान नहीं था यरूशलेम पे। यरूशलेम उस वक्त यहूदियों की आबादी थी, एक मुसलमान नहीं था। आपने सारे यहूदियों को भगा कर वहां पे फ़लस्तीनियों को आबाद किया, तो ब्रिटिश ने भी वही किया ना भाई। जो कहते हैं ना कि ये नक्शे फैला रहे हैं कि ये ग्रीन है ना जो लेफ्ट पे, वो पूरा फ़लस्तीन था 47 से पहले। फिर यूनाइटेड नेशंस ने दूसरी पट्टी में जो है ग्रीन वो दिया फ़लस्तीन को। फिर 67 के बाद, वार के बाद ये रह गया, और आज ये है। कसूर किसका है? हिस्ट्री में जाए ना तो ये ब्लू है ना, ये पूरा इजराइल था। जॉर्डन भी था इसमें, इजिप्ट भी था, काफ़ी चीज़ें थी। तो आपका कसूर है, आप शराफत से जो टू नेशन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, जो इंडिया में हुई तो वो हो गई, इधर क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किया? आप अपनी बदमाशी में रहे, या तो आपके पास इतनी ताकत हो। अब हमास ने जो किया, इसके बारे में भी लोग सवाल करते हैं कि हमास को पता था कि ये सब इसका नतीजा निकलेगा, तो हमास ने ये सब क्यों किया? तो देखें, काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स है ना, फॉरेन रिलेशंस, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसने कहा है कि हमास का और ईरान का पहला मकसद ये था कि जो पीस डील सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान हो रही है उसको रोकें, और उन्होंने वो मकसद हासिल कर लिया। और वो पीस डील अगर हो जाती तो हमास और फ़लस्तीन का फ्यूचर ख़त्म था। अगर सऊदी अरब ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना था तो पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट कर लेती, और जब ये हो जाता तो फिर फ़लस्तीन का कौन भाव पूछता? तो ये मकसद इन्होंने हासिल कर लिया। दूसरे प्रोफेसर मैक्स बूट सीनियर फेलो हैं जो, वो कह रहे हैं कि इजराइल का 9/11 है, और जिस तरह 2001 के 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से लेकर इराक तक पूरी दुनिया का तहस नहस कर दिया और एक पूरी हिसाब किताब चेंज हो गया, तो अब ये 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ है, इसका भी नतीजा उससे मुख्तलिफ नहीं निकलेगा, मामला बहुत दूर जाएगा। एलियट अब्राम्स, ये भी सीनियर फेलो हैं, ये कह रहे हैं कि हमास का सरप्राइज अटैक्स इजरायली सिविलियंस है ना, उनके ऊपर जो सिविलियंस पे अटैक किया है, उसने रूल्स ऑफ वॉर को चेंज कर दिया है। अब जो कि हमास और इजराइल के दरमियान रूल्स ऑफ वॉर थे वो ख़त्म हो गए। अब इजराइल तो ऑल आउट हो गया है। ऐसे कई प्रोफेसर्स के मेरे पास, मैंने इनकी स्टडी की है, और ये है कि एक और पॉइंट ये था कि हम इजराइल में है ना, एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है काफ़ी अरसे से, और लाखों इजरायलियों ने बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही है काफ़ी अरसे से। तो हमास और ईरान ने सोचा कि इस वक्त पॉलिटिकली इजराइल कमज़ोर है, तो
तो ये बेस्ट मौका है हमला करने का। जैसे 26/11 पाकिस्तान ने किया, वो उस वक्त किया जब वाजपेयी सरकार ख़त्म हो गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी। तो पाकिस्तान को पता था कि कमज़ोर पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि कोई बड़ा स्टेप नहीं लेगी, चुपचाप मार खा के बैठ जाएगी कि आपके मार यही कांग्रेस 60 साल करती रही है। तो उन्होंने सोचा शायद ये ऑपोजिशन इजराइल की है, वो पॉलिटिक्स में लगी रहेगी, ये अपनी सरकार बचाने में लगा रहेगा, तो हम हमला कर दें। लेकिन ये इजराइल की ऑपोजिशन है, इजराइल के पॉलिटिशियन और इजराइल का सिटीजन नेशनलिस्ट है। भारत का पॉलिटिशियन जो है ना, वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो सेल्फिश है। अपने खानदानों की बचत के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। मुझे याद है जब बादशाह आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बादशाह बना ना जिस दिन, तो एक आदमी भागता हुआ बल्ली माड़ा चांदनी चौक दिल्ली में गालिब के घर की तरफ भागा। तो इसको रास्ते में गालिब मिल गया, तो गालिब को कहता है कि मिर्ज़ा अबू जफ़र बादशाह बन गए। तो गालिब ने कहा कि आप अबू जफ़र से क्या तवक्को रख रहे हैं, आपकी उससे क्या उम्मीदें हैं? क्या मुसलमानों की या हिंदुस्तानियों की हालत बदलेगी इधर? क्या इंडिया अंग्रेज सरकार से आज़ाद हो जाएगा? तो उसने कहा नहीं होगा क्या? तो गालिब ने कहा कि बादशाहों के नजरिए, पॉइंट ऑफ व्यूज, स्ट्रगल अपने खानदान की सर्वाइवल के लिए होते हैं। बादशाह कंट्री के लिए लड़ता है भी है तो वो इसलिए कि वो उस कंट्री पे उसके खानदान का रूल रहे। उसका खानदान का रूल खतरे में होगा तो वो कंट्री को भाड़ में डालेगा, खानदान को बचाएगा। यही भारत की डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टीज का है। जिन कांग्रेस में क्या अच्छे लीडर नहीं है क्या? मतलब अच्छे से मतलब पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं। कल के एक लौंडे को पप्पू जो इनकी गोदों में खेला है उसको उनका लीडर बना के बिठाया हुआ है। नाम का एक प्रेसिडेंट बिठाया हुआ है जो प्रेसिडेंट कहीं नजर ही नहीं आता। सारा काम तो ये कर रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? इसी तरह आप जिसका भी देख लें, स्टालिन को देख लें, क्या स्टालिन की सरकार में इसका बेटा इतना क्वालिफाइड कि आता ही मिनिस्टर? यही मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव मिनिस्टर, क्यों इसकी पार्टी में कोई और क्वालिफाइड नहीं था जो चीफ मिनिस्टर बनता? या लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कोई और क्वालिफाइड नहीं है जो उसके बेटे बन रहे हैं, उसकी बीवी बनती है, यही सब बनते हैं। तो ये इनके अपने खानदान और अपनी लालच है इनकी, देश इनके लिए कुछ नहीं होता। खैर अगेन मैं पॉइंट से हट रहा हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और लोग मुझे पकड़ते हैं कि आरिफ भाई। एनीवे, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने हमास को स्ट्राइक करना शुरू किया है, जो आने वाले दिनों में हम अपने दुश्मनों के साथ करेंगे ना, वो उनकी नस्लें याद रखेंगी। और मैं आपको बता दूं, जाहिर है 9/11 के बाद ये नहीं थोड़ी है कि टेररिज्म दुनिया में, इस्लामिक टेररिज्म खत्म हो गई। हुई ना, फिर इंग्लैंड में भी हुई, बार्सिलोना में भी हुई, मैड्रिड में भी हुई, बेल्जियम में भी हुई, बाली इंडोनेशिया में हुई, श्रीलंका 26/11 होती रही है, होती रहेगी। लेकिन एक बड़े लंबे अरसे के लिए फलस्तीनियों की टेररिज्म की पावर खत्म कर दी जाएगी। देखें अजीज दोस्तों, सीरिया के हलब जिसको अलेप्पो कहते हैं और दमस्कस जिसको दमिश्क कहते हैं, इन एयरपोर्टों पे ईरानियन इंटरेस्ट की चीज़ों को बमबारी करके तबाह कर दिया। सीरिया की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंफर्म किया है कि इजराइल ने सीरिया के इन 2 एयरपोर्ट्स पे बमबारी करके काफ़ी इंस्टॉलेशन को ख़त्म कर दिया है, रनवेज तोड़ दिए हैं। चांस ही नहीं बचा कि वहाँ से कोई टेररिस्ट अब हवाई जहाज़ लेके आ जाए या कुछ करे, चांस ही नहीं है। और वो सारी ईरानियन सपोर्टेड इंस्टॉलेशंस थी, वो कमज़ोर कर दिया उन्होंने।
लोग सवाल करते हैं कि आयरन ऑफ डोम क्या है। तो खैर अब तो लोगों ने इतनी वीडियोस हैं किस तरह यहाँ से रॉकेट आता है और किस तरह वो बीच में इसको इंटरसेप्ट कर लेता है। और अमेरिका ने पूरे जहाज़ भर के वो मिसाइल भेज दिए हैं, क्योंकि वो आयरन ऑफ डोम की जो बैटरी है उसमें वो सारे मिसाइल होते हैं और वो ठक 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 ठक, क्योंकि वो अगर 500 रॉकेट एक साथ मारते हैं तो यहाँ से भी 500 मिसाइल जाके उनको इंटरसेप्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है मिसाइल की एक कैपेसिटी होती है। पहले दिन 5000 गज़ा से रॉकेट फायर हुए हैं और आज 7वां दिन है। 7वें दिन तक लगातार बेरूत से भी, लेबनान से भी फायर हो रहे हैं और गज़ा से भी हो रहे हैं। तो हज़ारों रॉकेट, तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हज़ारों मिसाइल तो अमेरिका ने भर भर के भेजे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँचे तेल अवीव और पहली बात उन्होंने ये कही कि इज़राइल को अपने दिफा, अपने डिफेंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये अमेरिका का मसला है। और ये सबको पता है कि इज़राइल इज़ अमेरिका। हमास ने अमेरिका से पंगा लिया है और अमेरिका ने जो जिराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है, 75 लेटेस्ट फाइटर जेट्स उसमें हैं, हज़ारों ड्रोन्स हैं, हज़ारों मिसाइल्स हैं और बाकी बहुत कुछ है। वो इसलिए भेजा है कि बाकी कोई ईरान, सीरिया, इधर उधर से कोई बदमाशी ना करे, कि जिसने आना है बाजा बजा देना है हमने। तो अजीज़ दोस्तों, गज़ा के बॉर्डर के इलाके को, क्योंकि गज़ा का इज़राइल से ही लंबा बॉर्डर मिलता है, वो पूरे बॉर्डर एरिया को इज़राइल ने कंट्रोल कर लिए। और असल में ये आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये पिंक कलर है वो गज़ा है और जो ब्लू है वो इज़राइल है। लेकिन उस ब्लू के अंदर इज़राइल के हमास के टेररिस्ट घुस गए थे, तो वो एरिया है जहाँ पे इज़राइल की आर्मी ऑपरेशन कर करके अब बॉर्डर का एरिया पूरा कंट्रोल कर लिया है और काफ़ी हद तक चीज़ें इज़राइल के कंट्रोल में हैं। 3 लाख रिज़र्व फौजी जो सिविलियंस थे, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, क्योंकि इज़राइल में मिलिट्री ट्रेनिंग लड़का हो लड़की हो ऑब्लिगेटरी है। 18 साल उम्र हुई आपने ट्रेनिंग लेनी है 2 साल की, तो ये सारे रिज़र्व फौजी कहलाते हैं। वो पहुंच गए हैं 3 लाख। पूरी दुनिया में जितना इजरायली और यहूदी रहता है वो धड़ाधड़ पहुंच रहा है इजराइल, और वो अपने देश की दिफा के लिए खड़ा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटा, मुलायम सिंह यादव का बेटा, स्टालिन का बेटा तो कभी भी भारत के दिफा में नहीं आएंगे। ये हिस्ट्री है कि जब 1971 की जंग हुई तो भारत में एक राजीव गांधी नामी पायलट भी था, लेकिन उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने राजीव गांधी पायलट को छुट्टी दे दी। भारत की एयरफोर्स को उसको छोड़ना पड़ा। वो हालत जंग थी। हालत जंग में जब सिविलियंस को आप रिजर्व्स के तौर पे भेज रहे हैं, तो एक पायलट है, चाहे वो कमर्शियल पायलट हो, आप उनको एयरफोर्स की सर्विस में इमरजेंसी में ले सकते हैं। ये हर देश में होता है। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का बेटा पायलट था, वो भाग गया, भारत छोड़ के भाग गया, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने बेटे को आर्मी में डाल दिया, इनरोल करा दिया कि जाओ तुम देश की हिफाजत करो। ये होता है फ़र्क। ये है फ़र्क। जिस दिन और आज की भारत की लीडरशिप को ये एहसास है, आज की भारत की लीडरशिप हर तरह से आगे बढ़ के अपने देश की रक्षा और प्रॉस्पेरिटी के लिए हर चीज़ कर रही है। आम आदमी को आना होगा। एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस इजराइल हमास के मामले में मैंने मेजॉरिटी ऑफ इंडियन को करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को मैंने करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा है, और ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अपने देश के फ़ायदे के लिए देखें। मैंने एक और वीडियो में सारा आपको डिटेल बताया कि यह फ़लस्तीनी और ईरानी कश्मीर पे भारत को ऑक्यूपायर मानते हैं और पाकिस्तान का मानते हैं कश्मीर को। तो ये फ़र्क देखें। आज दुनिया का एक इस्लामिक देश है यूनाइटेड अरब इमारात। उसने जो हिसाब किताब रखा हुआ है ना, वो ज़बरदस्त है। सीरिया को इमारात ने वार्निंग दी है
कि खबरदार इस जंग में तुम घुसे हो तो। वाहिद कंट्री है जो हमास के टेररिस्टों को टेररिस्ट कह रहा है। इजराइल फलस्तीन वॉर से इमारात इजराइल के इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इमारात ने कह दिया। और एक मैं अप्रिशिएबल चीज़ कहूँगा कि तालिबान सरकार ने इस मामले में बड़ा स्टैंड वो किया। तालिबान सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि जंग रुकनी चाहिए, दोनों तरफ लोगों को अमन की तरफ आना चाहिए। तालिबान अपने फाइटर फ़लस्तीन को नहीं भेजेगा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। तालिबान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता और इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये नया तालिबान आया है जो मैं पहले कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि उसको पता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हमें इधर उधर इंटरनेशनल ग्लोबल वॉर और ये जिहादिज्म और ये सब पॉलिटिकल इस्लाम अब इसने छोड़ दिया है। ये फिल वक्त अपने अफगानिस्तान का सोच रहा है, आगे का आई डोंट नो, लेकिन फिल वक्त इनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। तो अजीज़ दोस्तों, ये लेटेस्ट सिचुएशन मैंने आपको इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।